بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردی، پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 مسافر شناخت کے بعد قتل۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے کوئٹہ سے لاہور جانے والی مسافر بس سے 9 مسافروں کو اغوا کر کے شہید کر دیا۔ جاں بحق 9 افراد کی میتوں کو ان کے آبائی علاقوں میں روانہ کر دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق قتل کیے جانے والے تمام 9 مسافروں کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں مسافروں کے صفاقانہ قتل کی شدید مذمت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا یہ بربریت فتنہ الہندوستان کی پاکستان میں خون ریزی کی گھناؤنی سازش ہے۔ فتنہ الہندوستان پاکستان میں انتشار اور بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے 69 شہریوں کا قتل فتنہ الہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردوں سے پوری قوت سے نمٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ عزم اور اتحاد سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کر کے دم لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلوچستان کے علاقے سراڈاکئی میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت۔ واقعے کو فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی قرار دے دیا۔ کہا دکھ کی اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بے گناہ اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر دشمن نے اپنی درندگی اور بدترین بربریت کا مظاہرہ کیا۔ ان بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور ان کے مقامی اعلی کاروں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے اور انہیں انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی بلوچستان واقعے کی شدید مذمت۔ کہتے ہیں دہشت گردوں نے بزدلی اور درندگی کا ثبوت دیا، ریاست اس کا سخت جواب دے گی۔ پاکستانی شناخت پر معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے۔ بے گناہوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ ریاستی جنگ ہے، اس میں دو ٹوک فیصلہ ہوگا۔ ہم فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورک تباہ کریں گے۔ دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدظن ہو رہی ہے۔ بھارت کی طرف سے دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس۔ شرکت سے خطاب میں کہا بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنے ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے ٹرائی سروسز ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ پاک فضائیہ کی قیادت کو بھی سراہا۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا الزام پاکستان پر لگایا۔ بھارت نے سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا بھارت نے اٹاری بارڈر بند کیا، ہم نے وہاگا بارڈر بند کر دیا۔ ہم نے بھارتی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ ہماری پوری توجہ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے پر ہے۔ پاکستان کو G20 میں شامل کروانا ہمارا ہدف ہے۔ پاکستانیوں کے ویزا مسائل حل ہونے کا امکان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ اسمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراک بڑھانے پر گفتگو۔ دونوں ممالک کا مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ شیخ سیف بن زائد ال نہیان نے محسن نقوی کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستانیوں کی بڑی تعداد UAE کی معیشت کی مضبوطی میں کردار ادا کر رہی ہے۔ ویزا پالیسی میں آسانی سے شہریوں کو بہت ریلیف ملے گا۔ پاکستان اور چین صرف سرحدوں سے نہیں بلکہ پہاڑ اور دریا سے بھی جڑے ہیں۔ یہ پہاڑ اور دریا ایک عظیم تہذیب کی علامت ہے۔ ہم اس ملک میں موجود ہیں جسے ہم اپنا آئرن برادر کہتے ہیں۔ آئرن برادر کی اصطلاح تاریخ اور ثقافت میں گہری جڑیں رکھتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا بیجنگ میں بین الاقوامی فورم سے خطاب۔ کہتے ہیں معزز فورم پر پاکستان کی نمائندگی میرے لیے اعزاز ہے۔ ہم وادی سندھ کی تہذیب کے وارث ہیں۔ ہم تہذیبوں کے سنگم پر موجود ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے 17 جولائی تک مزید بادل برسیں گے۔
पंजाब के बेशतर अजला में आंधी बारिश की पेश गोई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बायस मरी गिलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में 13 से 17 जुलाई के दौरान आंधी और बारिश की पेश गोई। पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों में 39 शहरी जान बहक और 103 जख्मी हो गए। पीडीएम में पंजाब ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बोसीदा इमारतें गिरने के वाकयात में 24 अफराद जान से गए। आसमानी बिजली गिरने से 3 और 8 अफराद डूबकर जान बहक हुए। डीजीपी डीएमए ने पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल की सतह पर है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों के बायस फिजाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर। दर्जनों परवाजों की आमदोरफ्त में ताखीर और बास की रवानगी मनसूख। खराब मौसम के बायस 3 परवाजों को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर लैंड कराया गया। 3 परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 26 परवाजें 1 से 7 घंटे तक ताखीर का शिकार हुई। कराची एयरपोर्ट पर 16 परवाजों को 1 से 5 घंटे तक ताखीर का सामना रहा। पेशावर, स्कर्दू, कोयटा, मुल्तान, सियालकोट की 15 परवाजें मुतासिर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ग्रीन पंजाब मिशन के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज। स्मोक के खात्मे के लिए गुज़िश्ता साल 1 करोड़ 30 लाख से जायद दरख्त लगाए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, रवां माली साल 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुक़द्दर है। स्मोक के खिलाफ हमारी जंग सिर्फ मौसमी नहीं, ये जंग माहौलियाती इमरजेंसी के तहत मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है। दरख्तों की हिफाजत सिर्फ माहौल नहीं, जिंदगी की हिफाजत है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेरे इलाज। डॉक्टर शिबली फराज की ओपन हार्ट सर्जरी करने पर गौर। अस्पताल ज़राए के मुताबिक शिबली फराज को बाज़ औक़ात दिल में दर्द महसूस होता है। ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। दिल के मरकज़ी शरियानों में से एक शरियान पर मसल्स ब्रिज है। शरियानों में रुकावट के बायस हार्ट अटैक का खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर जाने का केस। अदालत ने लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की वज़ीर आज़म की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ ने लीगल नोटिस को दावे के साथ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की थी। वज़ीर आज़म पर जिरह के दौरान बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन ने एतराज़ किया था। शहबाज शरीफ ने पानामा लीक्स पर 10 अरब की पेशकश के इल्ज़ाम पर बानी पीटीआई के खिलाफ दावा दायर कर रखा है। पीटीसीएल के साबिक मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीसीएल के साबिक मुलाजमीन के पेंशन केस पर फैसला सुना दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तिलाफी नोट लिखा कि 200 से जायद अपीलों पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया, माली मसाइल किसी इदारे को पेंशन की अदायगी से बरीज़िम्मा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का पीटीसीएल को 90 दिन के अंदर पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करने का हुक्म। मुल्क भर में ज़िंदगी की सेहत, बच्चों की बहबूद और नौजवानों की बाख्तियारी के शोबों में संगीन चैलेंजेस का सामना है। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हर माँ सेहतमंद और हर बच्चा महफूज हो। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, नौजवानों के लिए ऐसे मौके पैदा करने की ज़रूरत है जिनसे वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके। जब हम आवाम की फलाह को तरजीह देते हैं तो हम अपनी कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी ने खित्ते को आबी तबाही की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया। अल जज़ीरा की तफसीली रिपोर्ट में भारत की नाअहली और महदूद सलाहियतों का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली मुमकिन नहीं। मुआहदा खत्म या तब्दील करने के लिए दोनों ममालिक की रजा ज़रूरी है। भारत डैम बनाकर भी पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। सैलाब का खतरा इसकी अपनी आबादी को लाहक है। भारत कश्मीर पर कब्जे से दरियाओं के पानी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के हवाले से एक अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया।
मुल्क में बिटकॉइन ज़खायर कम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब के मुताबिक डेबिट कॉइन्स को कौमी ज़खीरे में शामिल किया जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के जरिए आमदन हासिल की जाएगी। इक़दाम पाकिस्तान को डिजिटल फाइनेंस में सफ़े अव्वल के ममालिक की फहरिस्त में शामिल करेगा। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंदतरीन सतह पर मजमूई ज़खायर $20 अरब से तजावुज़ कर गए। 4 जुलाई को ख़त्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में ज़खायर में $1 अरब 93 करोड़ का इजाफा। ज़खायर $20 अरब 2 करोड़ रहे। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक के ज़खायर $1 अरब 77 करोड़ इजाफे से $14 अरब 50 करोड़ रहे। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $16 करोड़ इजाफे से $5 अरब 52 करोड़ रहे। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। वर्सा हुमैरा असगर की मैयत लेकर लाहौर रवाना हो गए। अदाकारा के भाई ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, तकरीबन 10 माह कबल हुमैरा से राबता हुआ था। एक करीबी अजीज के इंतकाल की वजह से वो फौरी तौर पर कराची नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से लाश की वसूली में ताखीर हुई। हुमैरा की तदफीन लाहौर में की जाएगी। पुलिस की वाक़े की तहकीकात जारी। CDR में आने वाले कैब ड्राइवर और दीगर अफराद से भी तफ्तीश की जाएगी। शहर कायद के पोश इलाके डिफेंस फेज 5 बदर कमर्शियल के करीब अफसोसनाक वाक़या। खातून इमारत की चौथी मंजिल से गिरकर जाँ बहक। मुतवफ़िया की शनाख्त 45 साला निदा जुल्फ़िकार के नाम से हुई। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक निदा के शौहर का ताल्लुक रियल इस्टेट के कारोबार से है। वाक़े की तहकीकात मुख्तलिफ पहलुओं से जारी। अमरीका आने वाली मसनूआत पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। टैक्स तमाम शोबाजाती महसूलात से हटकर कायम होगा। हम बस ये कहने जा रहे हैं कि बाकी तमाम ममालिक को भी टैक्स देना होगा। दौरे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग, फील्डिंग मशकों और नेट सेशंस में भरपूर हिस्सा लिया। हेड कोच माइक बेसन कैंप कमांडेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कैंप में 15 रुकनी कौमी स्क्वाड के साथ 5 वाइड बॉल क्रिकेटर्स भी शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर भी कैंप में मौजूद। कौमी टीम 16 जुलाई को ढाका रवाना होगी। अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में कौमी टीम आज मलेशिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान फाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए पुर उम्मीद। ग्रुप मरहले में पाकिस्तान टीम 4 फतुहात के साथ नाकाबिल शिकस्त रही। इससे कबल टीम ने बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग के खिलाफ कामयाबी हासिल की। दूसरा सेमीफाइनल जापान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आबादी के बढ़ने से पैदा होने वाले मसाइल और हल को उजागर करना है। आबादी का आलमी दिन इस साल इस उन्वान से मनाया जा रहा है कि नौजवानों को ऐसे हालात मुहैया किए जाएं जहां वो खानदान बनाने का फैसला आज़ादाना तौर पर कर सकें। पाकिस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, जिसमें से 44% गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है।